received all the mercy from Sri Satchidananda Gaura Hari, embodiment of Satchidananda Gaura Hari's Kripa, and showing ideal behavior. Even though at 12 years old, he received already, by taking bath in the Padma River, all Mahaprabhu's prema for distributing everywhere. But he did not think, oh, I am perfect. No. He followed the ideal example and went to Vrindavan. Yeah. Because all sadhakas, they should aim to go to Vrindavan. But how can we go to Vrindavan unless we have satsang? So when he arrived in Vrindavan, he at once took shelter with Jiva Goswami Pad. He was the most eminent Vaishnava sadhu in Vrindavan. Everything he learned and studied with Jiva Goswami alongside Srinivasacharya and Yogi Krishna Shamananda Prabhu. And they were the best students, and they were empowered like 3 pillars or generals to take all the wealth of Goswami literature, Mahaprabhu's donation for whole humanity. Yeah. These teachings are the backbone and foundation of our sadhana and bhajan. So he took, together with Srinivas, Shamananda, these teachings, and they distributed them, established them in different parts in India. Especially they developed beautiful kirtan rasa because Mahaprabhu's special donation is kirtan rasa. Kirtan rasa. Yeah. Madhurya or Audharya with kirtan. Through kirtan distributed. Because kirtan, Nam and Nami, no difference. So by kirtan, by Harikatha, especially singing, Srila Narottam Das Thakur, he would sing and he would, in front of him, Mahaprabhu would manifest. Mahaprabhu With all associates, start dancing. Radha Krishna would manifest. Yes. Radha Krishna Pranamore, Yugala Kishore. And moreover, he embodied the complete mercy of Goswami Pada. Sri Rupa Manjari Pada, Seva Sampada. Sri Chaitanya Manovishtam Stapitanya. This is the composition, the gift, the well that we are now able to, I don't know if we can process or digest, but it is now coming to us. Yes. So we pray for mercy of all Vaishnavas, all Dhambasis, that we can get one iota of attraction, ruchi, for always meditating upon the gift of Srila Narottam Das Thakur. Jai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we heard from Pujyapat Prajanath Prabhu about the glories of Narottam Das Thakur. So you can see there are lots of devotees today coming to Narottam Das Thakur Samadhi, Vishnu Chakravarti Thakur Samadhi, Gangadharan Chakravarti Thakur Samadhi, and we have Loknath Das Thakur's Samadhi here as well. Shri Narottam Das Thakur ki jai. आज हम लोग जिस पवित्र स्थान पे आए हैं नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि में, आज उनका आविर्भाव दिवस है। आज उन्हीं के कारण विश्व के इतने लोग, हम लोग आज हरिनाम ले रहे हैं। ये हमारे गुरु वर्गों की कृपा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे तो ये सारे भगवान के और महाप्रभु के पार्षद है जन्मांतर से, और श्री राधा कृष्ण जुगल के भी पार्षद है। श्री चंपक मंजरी है जिनकी विशिष्ट सेवा है कि भगवान राधा कृष्ण के जो दूध उबालते हैं उनके दूध की सेवा है, कैसे उनके दूध की सेवा होती है। और ये जो चंपक मंजरी है, ये चंपक लता मंजरी के अनुगत्य में वो दूध की सेवा करते हैं। लेकिन इस धरातल में महाप्रभु के विचारों को और खासकर रूप गोस्वामी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए
नरोत्तम दास ठाकुर इस संसार में आते हैं हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए। सो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे हम जानते हैं कि खेतुरी ग्राम जो कि बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के वहाँ पे वो आविर्भाव हुए और बचपन से ही वो बहुत ही साधु हृदय के थे, बहुत ही वैरागी हृदय के थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। और नरोत्तम दास ठाकुर के आने के बहुत पहले जब महाप्रभु पुरी में नीलाचल क्षेत्र में गंभीरा में थे, तभी एक दिन उन्होंने हुंकार करके पुकारा, नरोत्तम नरोत्तम। और सभी भक्त लोग महाप्रभु के पार्षद वहाँ पे पूछने लग गए कि यहाँ पे नरोत्तम कहाँ है, हमारे भक्तों में तो कोई नरोत्तम नहीं है, तो ये महाप्रभु किनको पुकार रहे हैं। तभी महाप्रभु ने उनको भविष्यवाणी दी कि भविष्य में एक ऐसा महान भक्त आएंगे जो इस पूरे धरती को प्रेम के बंदिया में उनको डुबा के लेके जाएंगे। और तभी गंभीरा में महाप्रभु के प्रेमाश्रु निकले, जिनको नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही संभाल के रखा और बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको पद्मा नदी को सौंप दिया। तो ऐसी कालांतरित में जब नरोत्तम दास ठाकुर 12 साल के हुए, तब उनको नित्यानंद प्रभु की सपने में आए और सपने में आके बोले कि अभी आप भगवान के भजन के लिए निकल जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वहाँ से निकले और पद्मा नदी में जब उन्होंने डुबकी लगाई, तो पद्मा नदी ने महाप्रभु के प्रेमाश्रु नरोत्तम दास ठाकुर को दे दिए। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे तो बचपन से सांवले कलर के थे, लेकिन महाप्रभु के प्रेमाश्रु मिलने के प्राप्त करने के बाद वो स्वर्णिम कलर के हो गए, गोल्डन कलर के हो गए। जैसे हम जानते हैं हमारे गोल्डन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे स्वर्ण रंग के हो गए। और स्वर्ण रंग के होने के बाद जब उनके घर वाले भी उनको ढूंढने के लिए आए, फिर भी वो नरोत्तम दास ठाकुर को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो तो एकदम अलग ही उनकी रूप और उनकी अष्टकालीन जो भाव मुद्रा होके अलग ही रूप में वहाँ से जाने लग गए। एनीवे फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने घर पे आ गए और उसके बाद फिर जब भगवान का आदेश हुआ, नित्यानंद प्रभु एवं महाप्रभु के आदेश से वो वृंदावन की तरफ चलने लग गए। वृंदावन में की तरफ चलते चलते उस समय अगर आप नवद्वीप से पुरी जाते हैं तो 1 महीना लगता था। तो जितने भी नवद्वीप वासी थे वो 1 महीना जाने में, 1 महीना आने में और चतुर्मास के 4 महीना वहाँ पे, तो 6 महीना तो उनको ऐसे ही चला जाता था साल में। और वहाँ से वृंदावन आने में कम से कम 3 से 4 महीना, 3 महीना लगेगा, क्योंकि अराउंड 1500 किलोमीटर बहुत लंबा है। तो कुछ तो लिए नहीं, वो ऐसे ही चले गए बेयर फुट, कोई कुछ बिना पहने वहाँ से चले गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो 15 दिन तक जब उन्होंने कुछ भी अपना पानी या कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, तो वहाँ पे स्वयं श्री महाप्रभु एक छोटे बालक के रूप में आए, एकदम गौर वर्णन के, और आके नरोत्तम दास ठाकुर को दूध दिए। और उस दूध को प्राप्त करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर फिर से उनमें शक्ति आ गई। यात्रा में जो कांटे से एवं जो थकान उनको आई थी, उनको फिर से आगे और फिर से वृंदावन की तरफ चले। वृंदावन में आके वो अपने जो जीव गोस्वामी के पास, बाकी वैष्णव के पास यहाँ पे आए। और फिर वो हम लोग जानते हैं कि कैसे वो लोकनाथ दास गोस्वामी की सेवा में रहे। लोकनाथ दास गोस्वामी जो है, जिनकी समाधि यहीं पर है, हमारे परम पूज्यपाद लोकनाथ दास गोस्वामी, जो इस वृंदावन में आने वाले बहुत पहले के संतों में हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी, इनको महाप्रभु ने सबसे पहले यहाँ पे पहले भेजा थे। ये लोग अष्ट गोस्वामियों में भी आते हैं, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ पे रहते थे ब्रज में, उनकी ब्रज के प्रति ऐसी भावना थी कि वो ब्रज में कोई मल त्याग नहीं करते थे। ब्रज बलराम तत्व, श्रीमती राधा रानी का क्रीड़ा क्षेत्र
तो ब्रज में कोई अपराध नहीं करने के कारण वो ब्रज से दूर जाके एक जंगल में जाके अपने मल को त्याग करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब लोकनाथ दास गोस्वामी से अप्रोच किया कि मुझे आप शिष्य लो, लोकनाथ दास गोस्वामी ने मना किया शुरुआत में, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र थे। इनफैक्ट लोकनाथ दास गोस्वामी इतने विनम्र थे कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी लोकनाथ दास गोस्वामी से महाप्रभु की सारी लीलाएं सुनी, लोकनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि मेरा उल्लेख कहीं मत करना। तो बहुत ही विनम्र और ये थे। लेकिन 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर काफ़ी दिनों तक लोकनाथ दास गोस्वामी जहाँ पे मल त्याग करते थे उस वाले जगह को बहुत सुंदर समतल रोज ऐसे करके जाते थे। और ऐसे फिर लोकनाथ दास गोस्वामी उनके सेवा से प्रसन्न होके उनको अपनी दीक्षा उनको दी। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है जीव गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी, जैसे हम लोग जानते हैं कि रूप रघुनाथे पदे रोहिल मन आशा, प्रार्थना कहे श्री नरोत्तम दास। तो वो रूप रघुनाथ और लोकनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरुदेव ने उनको जीव गोस्वामी के स्कूल में भेजा, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी के स्कूल में 3 प्रमुख आचार्यों जो बाद में आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, दुखी कृष्णदास एवं श्रीनिवास। बाद में जीव गोस्वामी ने ही उनको उपाधि दी, श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम को नरोत्तम दास ठाकुर एवं दुखी कृष्णदास को श्यामानंद। तो उनके जीव गोस्वामी के वहाँ से उन्होंने सारे संदर्भ रूप गोस्वामी के सारी ग्रंथों को उन्होंने पठन किया। और बाद में जब उनके गुरुदेव 110 साल के थे, लोकनाथ दास गोस्वामी काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी उनके गुरुदेव की आदेश से नरोत्तम दास ठाकुर सारे 6 गोस्वामी के ग्रंथ लेके बंगाल एवं उड़ीसा की तरफ गए। ऑल्दो नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कौन ऐसा चाहेगा कि उनके गुरु जिनके प्रति उनकी ऐसी अगाध ममता है और जो 110 साल के हैं, इतने वृद्ध है, वो अपने गुरु को वहाँ पे अकेले छोड़ के, और उनके गुरु के भी 1000 शिष्य है नहीं, एक ही शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। तो जिन गुरु के एक ही शिष्य है, ऐसे जो 110 साल के, उन गुरु को भी छोड़ के अपने मन को केवल हम जैसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने सारे ग्रंथ लेके फिर बंगाल की तरफ गए। फिर हम जानते हैं कैसे विष्णुपुर के राजा द्वारा और ज्योतिष द्वारा उन सारे ग्रंथों की चोरी हो जाती है, और कैसे फिर नरोत्तम दास ठाकुर आगे सब जाके फिर से अपने खेतुरी ग्राम जाते हैं, वहाँ पे 6 विग्रह वो वहाँ पे प्रकट करते हैं। आगे बहुत कैसे वो जहानव ठाकुरानी, वीरचंद्र गोस्वामी, अच्युतानंद एवं जितने भी महाप्रभु के जो भी परिकर थे, उन लोगों की कृपा लेके कैसे इस भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हैं। इस शुद्ध ये जो रूप गोस्वामी की जो रूपानुगा विचारधारा है, उन्नत उज्ज्वल रसम स भक्ति श्रियाम, इस भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम उन्हीं के कृपा से इस भक्ति धारा में आके तो इन द एंड हाउ ही कम इन वृंदावन इन द एंड। और फिर एंड में कैसे, आप बोलिए। नहीं, आई एम आस्किंग, नो रियली, आई हर्ड जस्ट फ्रॉम प्रभु जी कि इन द लास्ट मोमेंट he melt his body in the Yamuna. He melt his body in Yamuna. हाँ, इस तरह के दो तीन ये है, ऐसे श्यामानंदो के भी ऐसे ही है। Yeah, because some places is written he melt his body in the same river where he got the same, but in some places is written he melt his body in Yamuna river. Exactly. कि एक तरह से जो भी ब्रजवासी है, जैसे जो भी ये है वो भी कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं, जो नवद्वीप वासी है वो भी कभी नवद्वीप छोड़ के नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम नरोत्तम दास ठाकुर के समाधि में उनके चरणों में आघात प्रार्थना करते हैं कि वो, क्योंकि बर्थडे के दिन स्पेशल हैप्पी होते हैं। जैसे किसी के बर्थडे में हम जाएंगे तो खुश होकर ये करेंगे, तो हम उनके करते हैं कि उनकी भक्ति की एक छटा हमारे बूंद में, हमारे हृदय में आए। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कैसे नरोत्तम दास ठाकुर नित्य सिद्ध परिकर चंपक मंजरी तो है, और किस प्रकार से उनके वहाँ पे जो स्फूर्ति होती थी, जो लीला वो देखते थे, वो
अप्रकट्य धाम, प्रकट्य धाम और दृश्यमान धाम। तो अप्रकट्य धाम में वो लीला ऑटोमेटिक चल रही थी और उन्हीं लीला को वो दर्शन करते थे। जब एक बार वो मानसिक सेवा कर रहे थे, स्वयं श्रीमती राधिका आके उनकी मानसिक सेवा को स्थापित करते हैं कि हाँ। और जब एक बार वो मानसिक सेवा करते करते बहुत सारी सूखी लकड़ी लेके आते हैं और लकड़ी सूखी थी इसलिए आग बहुत जल्दी जल जाती है और दूध एकदम से उबलने लगता है। और दूध उबलते उबलते जब नरोत्तम दास ठाकुर उस बर्तन को एकदम से लेते हैं, क्योंकि एकदम से आग बहुत गर्म हो गई थी, उनकी उंगलियां वहाँ पे जल जाती है। और जब अपने मानसिक सेवा से जब इस बाह्य दृश्यमान धाम में या प्रकट्य धाम में वो फिर से आते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ भी उनके हाथ उंगलियाँ जो है वो जली हुई है। और ये बात जब जीवा गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी जब इन सारे को श्रवण करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो नित्य परिकर महाजन हैं, इनकी स्फूर्ति, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, हमारे हृदय में सांसारिक इच्छाएं वासनाएं ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। दुनिया जहाँ की इच्छा ऑटोमेटिक आ रही है, वैसे ही ये नित्य परिकर के इसमें भगवान की अष्टकालीन लीलाएं की ऑटोमेटिक स्फूर्ति हो रही है। उनको इमेजिनेशन नहीं करना पड़ रहा है, उनको चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है और हमें करना भी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो यही ये नित्य परिकर है, उनके इसमें हम लोग ये प्रणाम करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर।